السلام علیکم، آپ دیکھ رہی ہیں بول نیوز، میں ہوں شمائلہ ارشد اور میں ہوں مونس رضا۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، اہم خبر سے بلٹن کا آغاز کریں گے۔ ایران میں حکومت مخالف مظاہروں میں 2000 سے زائد افراد کی جان چلی گئی۔ برطانوی خبر ایجنسی رائٹرز نے بڑا دعویٰ کر دیا، کئی شہروں میں مظاہرے جاری ہیں، جاں بحق افراد میں 200 سے زائد سیکیورٹی اہلکار بھی شامل ہیں۔ ادھر ایرانی حکام نے رائٹرز کا دعویٰ مسترد کر دیا اور یہ کہا کہ پرتشدد مظاہروں کا زور ٹوٹ گیا، حالات معمول پر آنے لگے، پابندیوں میں نرمی آ گئی، بین الاقوامی کالز بحال کر دی گئی۔ ایران کے حالات کشیدہ، اموات کی تعداد 2000 سے بھی تجاوز کر گئی۔ مہنگائی کے خلاف شروع ہونے والے مظاہروں میں شدت آ گئی، صورتحال مزید بگڑ گئی۔ 2000 سے زائد افراد جھڑپوں میں جاں بحق ہو چکے۔ برطانوی نشریاتی ادارے رائٹرز نے بڑا دعویٰ کر دیا، لکھا کہ شیراز، تہران اور دیگر اضلاع میں مظاہرے جاری ہیں۔ دوسری جانب ایرانی حکومت نے دعوے کو من گھڑت قرار دے دیا، کہا کہ حالات معمول پر ہیں، مظاہروں کی شدت میں کمی آئی ہے، پابندیوں میں نرمی کی گئی ہے، انٹرنیشنل کالز بھی بحال کر دی گئی ہیں۔ ایرانی حکومت نے مظاہرین پر سیدھی گولیاں برسانے کا حکم دے دیا۔ نیو یارک ٹائمز نے بڑا دعویٰ کر دیا، رپورٹ میں انکشاف کیا کہ 28 دسمبر سے اب تک پرتشدد مظاہروں میں 3000 سے زائد ایرانی مارے جا چکے ہیں، ہزاروں زخمی ہیں۔ ایران میں انٹرنیٹ اور فون سروس بند ہے، جس سے آزاد ذرائع کو حقیقت تک رسائی محدود ہے۔ بلیک آؤٹ کا مقصد حکومتی تشدد کی تصاویر اور ویڈیوز کو دنیا تک پہنچنے سے روکنا بتایا جاتا ہے۔ ایرانی محب وطن احتجاج جاری رکھیں، اپنے اداروں کا کنٹرول سنبھالیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایرانی مظاہرین سے ہمدردی کا اظہار، بولے مظاہرین کے قاتلوں اور ظالموں کے نام محفوظ کر لیں، انہیں بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ ایرانی مظاہرین کے قتل بند ہونے تک ایرانی حکام سے تمام ملاقاتیں منسوخ کر دیں۔ ایرانی مظاہرین کے لیے مدد جلد پہنچنے والی ہے۔ ادھر اقوام متحدہ نے ایران کے مظاہروں پر گہری تشویش کا اظہار کر دیا۔ سیکریٹری جنرل نے بیان میں امن ریلیوں، اظہار رائے اور اجتماعات کے حقوق کا تحفظ دینے پر زور دیا ہے۔ انٹونیو گوتریس نے ایرانی حکام سے کہا کہ وہ زیادہ طاقت کے استعمال سے گریز کریں۔ یورپی یونین نے بھی ایران کے احتجاج کرنے والوں کے خلاف شدید طاقت کے استعمال کو سختی سے مسترد کر دیا اور مظاہرین کے علامتی حق اور آزادی کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ ایران نے کئی شہروں کے گھروں سے امریکی ساختہ دھماکہ خیز ڈیوائسز ملنے کا دعویٰ کر دیا۔ امریکی انٹیلیجنس ایجنسی کا کہنا ہے کہ کارروائی کے دوران کئی گھروں سے امریکی اسلحہ بھی پکڑا گیا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے دعویٰ کیا ہے کہ بین الملک سے دہشت گرد ایجنٹوں کو احکامات دیے گئے، جس کی ریکارڈنگز موجود ہیں۔ ایرانی حکومت نے احتجاج باضابطہ تسلیم کیا، مظاہرین سے بات چیت میں مصروف تھے۔ فسادی ٹولے نے مظاہرین پر تشدد کیا، اس کے پیچھے ٹرمپ ہیں۔ امریکہ نے ایران پر حملے کے لیے مختلف آپشنز پر غور شروع کر دیا ہے۔ امریکہ کے دفاعی عہدیداروں نے صدر ٹرمپ کے ساتھ طویل نشست کی۔ بتایا گیا کہ ایران میں سائبر، نفسیاتی آپریشنز اور فوجی قوت مل کر ایک آپشن ہو سکتے ہیں۔ ادھر قطر کے العدید ایئر بیس پر امریکی جنگی طیاروں کی سرگرمیوں میں اضافہ ہو گیا۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ کے اگلے اقدامات کے بارے میں کوئی پیشن گوئی نہیں کی جا سکتی۔ امریکہ کا ایران پر ممکنہ وار مختلف آپشنز پر غور شروع ہو گیا۔ امریکی صدر ٹرمپ کو ایران میں فوجی، سائبر اور نفسیاتی آپشن سے متعلق بریفنگ۔ امریکی عہدیدار نے بتایا ہے کہ سائبر، نفسیاتی آپریشنز اور فوجی قوت مل کر ایک آپشن ہو سکتے ہیں۔ ادھر قطر کے العدید ایئر بیس پر امریکی جنگی طیاروں کی سرگرمیوں میں اضافہ ہو گیا۔ العدید ایئر بیس ایران کی سرحد سے 200 سے 300 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس نے کہا، صدر ٹرمپ کے اگلے اقدامات کے بارے میں پیش گوئی نہیں کی جا سکتی۔ امریکی محکمہ خارجہ نے اپنے شہریوں کو ایران چھوڑنے کی ہدایت کر دی۔ قومی سلامتی کے امور میں یکسوئی وقت کی ضرورت ہے، مظلوموں کی حمایت پاکستان کی اخلاقی ذمہ داری ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی قومی پیغام امن کمیٹی سے ملاقات میں گفتگو۔ این پی اے سی نے قومی بیانیے کے فروغ کے لیے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی، پاک افواج سے غیر متزلزل یکجہتی کا اظہار کیا۔ قومی سلامتی کے امور میں یکسوئی اور بیانیے پر اتفاق رائے وقت کی ضرورت قرار۔ قومی پیغام امن کمیٹی کا پاک افواج سے غیر متزلزل یکجہتی اور ریاستی دشمن بیانیوں کے خلاف مشترکہ عزم کا اظہار۔ این پی اے سی نے ڈی جی آئی ایس پی آر سے جی ایچ کیو میں ملاقات کی، قومی بیانیے کے فروغ کے لیے مکمل تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ ملاقات میں فتنہ الخوارج، ٹی ٹی پی اور ٹی ٹی اے کے تناظر میں داخلی سلامتی پر جامع گفتگو بھی ہوئی۔ کشمیر اور غزہ پر اصولی موقف کی توثیق کی گئی۔ نفرت انگیزی اور فرقہ واریت کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی اپنانے پر اتفاق ہوا۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا کہنا تھا کہ قومی سلامتی کے امور میں یکسوئی اور بیانیے پر اتفاق رائے وقت کی ضرورت ہے۔ مظلوموں کی حمایت پاکستان کی اخلاقی ذمہ داری ہے۔ دشمن کی نفسیاتی جنگ کے مقابلے کے لیے عوامی شعور اور سچائی پر مبنی بیانیہ فیصلہ کن ہتھیار ہے۔
कमेटी ने मेंबरों महराब से इत्तेहाद उम्मत, समाजी अहम आहंगी और आईनी बराबरी के पैगाम को मुल्क गिर सतह पर फैलाने का ऐलान किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने पाक अफगान बैन अल-अक़वामी सरहद से मुतालिक गुमराहकुन बयानिए को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि इस मामले पर फैलाया जाने वाला प्रोपेगेंडा हक़ाइक़ के मनाफी है और इसे किसी सूरत कबूल नहीं किया जा सकता। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर अपने बयान में वफाकी वज़ीर इत्तलात का कहना था कि पाक अफगान सरहद एक बैन अल-अक़वामी तस्लीम शुदा सरहद है और इसे बैन अल-अक़वामी सरहद ही समझना चाहिए। साथ ही इसके मुताबिक तर्ज़ अमल इख्तियार करना भी नागुज़ीर है। अताउल्लाह तारड़ ने मज़ीद कहा कि कुछ अनासिर जानबूझकर अभाम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, तहम सुहेल आफरीदी इन चंद लोगों में शामिल हैं जिन्हें यह हकीकत ताहाल समझ नहीं आ रही। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी, जोग्राफियाई सरहदों और कौमी मफादात पर किसी किस्म का समझौता नहीं करेगा और गुमराहकुन बयानिए का हर सतह पर मौसर जवाब दिया जाएगा। चेयरमैन बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ। सदर की मंजूरी के बगैर ऑर्डिनेंस के इजरा से पैदा होने वाली सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। मीडिया से गुफ्तगू में राजा परवेज़ अशरफ ने कहा कि हुकूमत के इत्तेहादी हैं और रहेंगे। पीपल्स पार्टी यकसुई के साथ, सिस्टम के साथ खड़ी है। हुकूमत और इत्तेहादियों के दरमियान मामला तय पा गए। पीपल्स पार्टी ने कौमी असम्बली का बाइकॉट खत्म कर दिया। जियाले अरकान इजलास में शरीक हुए। इस्लामाबाद में पीपी रहनुमाओं की बैठक लगी। सदर की मंजूरी के बगैर ऑर्डिनेंस के इजरा से पैदा होने वाली सूरत हाल पर मुशावरत की गई। पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी इजलास में राजा परवेज अशरफ ने नून लीग से इख्तलाफात खत्म होने की तस्दीक कर दी। हमने वॉकआउट किया तो हुकूमत ने फौरी तौर पर समरी मूव करके वो ऑर्डिनेंस वापस ले लिया। तो मैं समझता हूँ अच्छा फैसला हुकूमत ने भी बर वक्त कर लिया। हम एक आदमी हैं, लेकिन जहाँ भी कोई गलत बात होती है, ये गलती से हो जाए या 7 हो जाए तो फिर उसको पॉइंट आउट तो करना पड़ता है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि सदारती ऑर्डिनेंस पर तनाज़ा गलत फहमी के बाइस हुआ। हकीकत पता चली तो वज़ीर आज़म की हिदायत पर ऑर्डिनेंस की प्रिंटिंग रोक दी। सेनेट और नेशनल असेंबली में तो एक्चुअल फाइल जानी थी, पता चल गया तो ऑर्डिनेंसेस में से वो कंफ्यूजन आई कि दूसरा ऑर्डिनेंस असेंट नहीं था, वो चला गया प्रिंटिंग के लिए। उसको प्राइम मिनिस्टर साहब ने हिदायत की, रोक लिया, इसलिए विड्रॉ। पीपल्स पार्टी राजी होगी सर? नहीं, राजी हैं। ये है ही कंफ्यूजन की वजह से एक छोटा सा फंबल हुआ और कुछ नहीं। गुज़िश्ता रोज सदर के दस्तखत के बगैर ऑर्डिनेंस जारी होने पर पीपल्स पार्टी ने एहतजाज करते हुए कौमी असम्बली से वॉकआउट किया था, जिसके बाद वज़ीर आज़म ने ऑर्डिनेंस वापस ले लिया। डॉक्यूमेंटेशन हमने सारी सबमिट कर ली है। डॉक्यूमेंटेशन सारे जो लीडर ऑफ द अपोजिशन के लिए है नेशनल असम्बली में, वो सारे इन ऑर्डर है। इनका इंशाल्लाह ताला कल ही वेरिफिकेशन हो जाएगा और ये मोर लाइकली है कि बुध या द लेटेस्ट जुमेरात को इंशाल्लाह ताला अचकज़ई साहब का नोटिफिकेशन हो जाएगा। वो इंशाल्लाह ताला मुतफ़िका उम्मीदवार है, वो अकेले उम्मीदवार है, ना अपोजिशन की तरफ से किसी और ने डॉक्यूमेंट्स जमा किए, न किसी का कोई इरादा है। तो ये जितना स्टेलमेट था अल्हम्दुलिल्लाह ये फाइनली ख़त्म हो जाएगा। कोई और नॉमिनेशन की फॉर्म किसी की तरफ से नहीं है, सिर्फ एक ही उम्मीदवार है, वो अचकज़ई साहब है। और जब खान साहब किसी को कह देते हैं कि यही हमने नॉमिनेट किया, वही नाम चलता है। बल्दियाती इंतखाबात हुकूमत को हर सूरत कराना होंगे। सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान की सरगोधा में मीडिया से गुफ्तगू कहा, पीपल्स पार्टी और नून लीग गिरते पड़ते साथ चल रहे हैं। मौजूदा हालात में पीटीआई सामने आए या ना आए, जमीयत उलमा इस्लाम ज़रूर आएगी। बल्दियाती इलेक्शन से कतरा रही है, इस बारे में क्या कहते हैं जनाब? मेरे ख्याल में बल्दियाती इलेक्शन आइन का तकाजा है, किसी वक्त तो करने ही होंगे। पीटीआई को सामने आने देंगे? पीटीआई सामने आएगी या नहीं आएगी, जमीयत उलमा इस्लाम सामने आएगी। ऐलान कर दिया है कि हम रेफरेंडम करेंगे, तो आप क्या कहते हैं इस बारे में? हमसे कोई राब्ता नहीं है, कुछ मालूम नहीं कि उनका क्या फ़लसफ़ा है। कोई राब्ता होगा तो उसके बाद ही बात कर सकेंगे। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से टेलीकम्युनिकेशन कंपनी एरिक्सन के वफ़द की मुलाकात हुई है। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान में टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर की तरक्की और सरमायाकारी में कंपनी के किरदार को सराहा। वज़ीर आज़म ने 5G समेत जदीद नेटवर्क्स के फ़रोग़ के लिए एरिक्सन के तजुर्बात से इस्तिफ़ादा करने में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया और महफूज और पायदार IT इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की को यकीनी बनाने के हुकूमती अज़्म का इआदा किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत गैर मुल्की सरमायाकारों की हौसला अफजाई और टेक्नोलॉजी के शोबे में स्ट्रेटेजिक शराकतदारी के फ़रोग़ के लिए मुकम्मल हिमायत जारी रखेगी।
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का मराकश का सरकारी दौरा। पाकिस्तान और मराकश ने दिफाई ताउन के हवाले से मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत किए। वज़ीर दिफा ने मराकश की नेशनल डिफेंस एडमिनिस्ट्रेशन के सरबरा अब्दुल लतीफ़ लोवी से मुलाकात की। बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन के फ़रोग़ के लिए वफूद की सतह पर तबादला ख्याल किया गया। ख्वाजा आसिफ ने मराकश की उमूर खारजा, अफ्रीकी ताउन के वज़ीर नासिर बोरेता और तारिकीन वतन से भी मुलाकात की। इससे कबल विफाकी वज़ीर ने मोहम्मद पंजुम के मज़ार पर भी हाज़िरी दी। दोनों ममालिक ने अमन, इस्तेहकाम और ताउन के लिए मुश्तरका अज़्म का इआदा किया। 8 फरवरी को सिंध में PTI की हड़ताल नहीं होने देंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध का दो टोक ऐलान। कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के दौरे कराची में 9 मई जैसा वाक़या दोहराया जाना था। PTI जानबूझकर शरारत करने के मूड में थी। थ्रेड अलर्ट के बावजूद जलसे की इजाज़त दी गई। बाग़ जिना का ट्रस्ट वफाक के तहत काम करता है। सुहेल आफरीदी पर दिए हुए रूट्स फॉलो न करने का इल्ज़ाम। शर्जील मेमन के मुताबिक PTI की जानिब से पुलिस पर पथराव किया गया। मीडिया की गाड़ियाँ तोड़ी गईं। ख़वातीन सहाफ़ियों से बदतमीज़ी की गई, जो कि उनकी रिवायत है। सारी इस जहन की अक्कासी है कि आपके लीडर ने आपके जहन में सिर्फ इंतशार और बगावत को पैदा किया। 8 फरवरी को किसी भी सूरत में सुबह सिंध में कहीं भी इस तरह की कोई हरकत नहीं होने देंगे जिससे कोई ज़बरदस्ती कारोबार या ट्रांसपोर्ट बंद करे। 9 आपको जो है आपके लिए थ्रेट एक अलर्ट जारी हुआ है। लेटर दे दिया कि भाई आप जलसा करो। और आपको पता है कि बाग़ जिना जो है ये एक ट्रस्ट है जो ट्रस्ट इजाज़त देता है, जो कि फेडरल गवर्नमेंट के अंडर है। इन इलाकों में जाएगा, इन इलाकों में नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें जहाँ पे कुछ जो थ्रेट्स हैं और बाकी इशूज़ हैं कमिटमेंट की, उसके बावजूद भी कमिटमेंट को फिर उन्होंने जो है उसकी वायलेशन की। पुलिस पे पथराव किए गए। ख़वातीन सहाफ़ियों को, जो कि PTI की एक पुरानी रिवायत रही है, ये सारी जहन की अक्कासी करती हैं कि आपका जो लीडर है जिसने आपके जहनों में सिर्फ इंतशार इस तरह की चीज़ें करनी जिससे खुदा न खासा किसी को नुकसान हो, आपने वो हर काम किया अनफॉर्चुनेटली। कौमी असम्बली में दरख्त लगाओ माहौल बचाओ का मुतालिबा कर दिया गया। मामले पर PP और MQM एक पेज पर नजर आए। पोलर एलर्जी की आड़ में दरख्तों की कटाई नामंजूर कर दी। तनकीद पर तलाल चौधरी चुप ना रहे, भरपूर जवाब दिया। दरख्तों की कटाई पर कौमी असम्बली में गर्मा गर्म बहस हुई। तवज्जो दिलाओ नोटिस पर तलाल चौधरी ने भरपूर जवाब दिया। कहा कि इस्लामाबाद में 29,000 दरख्त काटे गए हैं, जबकि 40,000 लगाए गए हैं। बिलावजह हुकूमती इक़दामात को निशाना ना बनाया जाए। 29,115 दरख्त हटाए गए। 40,000 दरख्त 8 से 10 फुट से जायद बड़े कद के दरख्त लगाए गए हैं। 30 मार्च पर 60,000 मजीद दरख्त इन्हीं जगहों पे लगाए जाएंगे। फारूक सत्तार ने जोर दिया कि हुकूमत को ख्याल रखना है कि जितने दरख्त काटे गए इससे ज्यादा लगने चाहिए। माहौलियाती तब्दीली अहम इशू है। स्मोक बढ़ रही है। इस्लामाबाद में बहुत पुराने दरख्त भी कटे हैं। दरख्त कटने नहीं चाहिए, और अगर दरख्त कट रहे हैं तो उनसे कई गुना ज़्यादा दरख्त लगने चाहिए। और हमारे बहुत सारे बड़े चैलेंजेस में एक बड़ा चैलेंज यकीनन माहौलियात की आलूदगी का है। PP रुकने कौमी असम्बली शर्मिला फारूकी ने कहा कि दुनिया में कहीं भी इतने बड़े पैमाने पर दरख्त नहीं काटे जाते। अचानक आपको ख्याल आया कि पेपर मलबरी से पोलन एलर्जी बढ़ रही है। 4 दरख्त लगाने से कुछ नहीं होगा। दुनिया भर में इस किस्म की मास कटिंग सर कहीं भी नहीं होती। आप खड़े हो गए, आपने कहा जी ग्रीन बेल्ट उखाड़ के फेंक दें, क्योंकि जी सडनली आपको ख्याल आ गया कि जी इट इज कॉजिंग पोलन एलर्जी। इट डज नॉट हैपन लाइक दिस सर। बड़े बड़े मैच्योर ट्री जो हैं उनको काटा गया है। अरकान असम्बली का कहना था कि पोलन एलर्जी से बचाव की खातिर माहौल की कुर्बानी किसी सूरत जायज नहीं, क्योंकि पाकिस्तान समेत दुनिया भर को माहौलियाती मसाइल का सामना है। भारत एक बार फिर खेल को सियासत की नज़र करने से बाज ना आया। T20 वर्ल्ड कप के लिए अमरीकी क्रिकेट टीम में शामिल चार पाकिस्तानी निजात खिलाड़ियों को ताहाल भारतीय वीज़े जारी नहीं किए गए हैं। ज़राए के मुताबिक फास्ट बॉलर अली खान को वीज़ा देने से इनकार कर दिया गया, जबकि शायान जहांगीर, एहसान आदिल और मोहम्मद मोहसिन को भी अब तक वीज़े नहीं दिए गए हैं। ICC ज़राए के मुताबिक लेटर ना मिलने की वजह से मसाइल आए, मामला जल्द हल कर लिया जाएगा। ICC ने तमाम टीमों को भारतीय वीज़े लगने की यकीन दहानी करवा रखी है। T20 वर्ल्ड कप में शिरकत के हवाले से बांग्लादेश का मामला ICC के लिए दर्द-ए-सर बन गया है। मामला सुलझने के बजाय मजीद उलझता हुआ दिखाई देने लगा है।
BCB के मुताबिक हुकूमती सतह पर इस बात पर इत्तेफाक किया गया है कि क्रिकेट टीम भारत नहीं जाएगी। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इस तनाज़े का वाहिद आबू मंदाना हल बांग्लादेशी टीम के मैचेस की भारत से मुंतकिली है। इसमें ताख़ीरी हरबे मामले को मज़ीद हवा देंगे, जिससे क्रिकेट की आलमी गवर्निंग बॉडी की एक इदारे के तौर पर साख भी दाव पर लग जाएगी। बोर्ड ऑफिशियल के मुताबिक इवेंट में शिरकत के लिए भारतीय फरमाइशी प्रोग्राम पर अमल दरामद किसी सूरत मुमकिन नहीं। सचिन तेंदुलकर की अमिताभ बच्चन के साथ क्रिकेट खेलने की वीडियो वायरल। वीडियो में अमिताभ बच्चन और सचिन तेंदुलकर हंसते मुस्कुराते एक दूसरे के मुकाबिल दिखाई दिए। अमिताभ बच्चन ने इसे एक यादगार लम्हा करार दे दिया, जिस पर सोशल मीडिया सारिफीन की जानिब से जबरदस्त रद्द अमल सामने आया। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।